What a fantastic time. We live in a world which is changing continuously and relentlessly. ہم سب ایک ایسی ندی میں بہ رہے ہیں جو کل کیا موڑ لے گی اس کا کسی کو اندازہ نہیں. جیسے بچے نے کہا کہ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ ایک کمرے میں بیٹھے گا جہاں پر کمپیوٹر سے گھرا ہوگا اور ایک پوری کی پوری فلم جو ہے ایک اسٹوڈیو 60x60 کے اسٹوڈیو میں بنا دے گا, جہاں آپ نے امیجز دیکھیں, ٹرین ہے چلتی ہے, اسٹیشنز ہیں, دوست لینڈسکیپس ہیں, کیا نہیں ہے. یہ امیجز سوچ کے ہم بہت ہی مڈل کلاس ماحول میں پلے بنے ہیں, جہاں پر ہم لوکیشن کے بارے میں 10 مرتبہ سوچتے تھے, اس کا کاسٹ کیا ہے, کتنا بڑا ہوگا. اور یہ جو امیجز تھی یہ رئیسوں کی جاگیر تھی, بڑے لوگوں کی جاگیر تھی, جن کے پاس بہت بڑے بڑے سٹارز تھے. مگر ٹیکنالوجی از دا گریٹسٹ لیولر. شاید اکرم کو یاد ہوگا کہ ہمارے سیٹ پہ جب اس ٹریلر کی شوٹنگ پر ٹم کوک آئے تھے, ایپل کے سی ای او, انہوں نے ایسے آئی فون کو اٹھا کے کہا تھا ایسے, this is the tool that will change the world. Now you can make movies, distribute movies, consume movies on this. Anybody who has ideas can now make a movie and reach people. آج جب ہم سڑکوں میں چلتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو لڑکا سڑک صاف کر رہا ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, اپنے گھر والوں سے وہ ویڈیو کال کر رہا ہے, تو لگتا ہے کہ دنیا میں کہیں پر ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہوئی. ایسا کچھ کیا ہے اس بچے نے, اور سچی بھائی نے آگے بڑھ کر اپنے ویژنری ہونے کا ثبوت دیا ہے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جینیس وہ نہیں ہوتا ہے جو ایک پہیا بناتا ہے, جینیس وہ ہوتا ہے جو باقی 3 پہیے جوڑتا ہے. انہوں نے آ کے 3 پہیے جوڑے ہیں, اور جب جا کے ہمارا ایک ورچوئل اسٹوڈیو جو ہے بننے والا ہے فرسٹ, اور یہ کرانتی ہی ہے, یہ اپنے آپ میں ایک ریولیوشن ہے. کیونکہ ہم نے سب شروع کیا تھا 70s میں, مچل کا زمانہ تھا, لائٹس کو لے جانے کے لیے مزدور اٹھاتے تھے ہیوی اکوپمنٹ لے کے, پہاڑوں پہ جاتے تھے, کمر ٹوٹ جاتی تھی. مگر آج یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سمبھو ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ ناؤ کین بیکم اویلیبل ٹو ایوری بڈی, and that is what the real democratization of the entertainment world is. ہم جو کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے ذریعے ریجنل سنیما کے ہمارے کریٹرز ہیں, فلم میکرز ہیں, جن کا بہت میگر بجٹ ہوتا ہے. پنجابی فلم میکرز ہو, بنگالی فلم میکرز ہو, اڑیا فلم انڈسٹری ہو, ملک کے کونے کونے سے, جس کے پاس بہت ہی ماڈریٹ بجٹ ہے, اور جس کے ذہن میں وہ سپنے تو ہیں کہ ایسے امیجز ہوں مگر پیسے نہیں ہیں, وہ آئے ہمارے پاس. او ٹی ٹی کا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے آپ, ٹیلی ویژن کا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے آپ, ایوری تھنگ از پاسبل. اور یہ ہوا کب؟ سب سے بھیانک موڑ پہ ہم جب آئے, جب کووڈ نے گھیرا اور بالکل لگتا تھا بس یا تو ہم پاتال میں جائیں گے یا شاید ایک دن اور جی پائیں گے. ایسے میں بچے نے جرأت کر کے اپنے آپ ایک قدم اٹھایا اور ایک ایسی دشا میں چل دیا جہاں سے اس نے انریل انجن اور یہ ورچوئل ریالٹی کی دنیا کو ایکسپلور کیا. اس کے جدا ہو کے بھی ہمارے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ڈیمانسٹریشن کا ایک ثبوت ہے. اینڈ ہندوستان کی عوام نے اس کو سراہا ہے. کوئی مجال ہے بولنے کے ساتھ یہ انریل انجن کا یہ شاٹ جو ہے انریل ہے. آپ کے متبھید ہو سکتے ہیں کانٹینٹ کو لے کر, بہت پکچر کے بارے میں ہوتا ہے, مگر جو عام ہندوستانی ہے یا جو سفسٹیکیٹڈ ہندوستانی بھی ہے وہ یہ نہیں بولتا کہ یہ
लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम वो 60x60 के सेट से बाहर ही नहीं गए हैं, ये अपने आप में एक रहस्य है। जैसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से, अपने पति से, अपनी पत्नी से बात सकते थे। टेक्नोलॉजी इज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times, and there are few things which I would like to say is that हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सतीश भाई जो ग्रासरूट से वाकिफ हैं, वो कहते हैं कि साहब भट्ट साहब कल तक अगर 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है। बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है। The economy is in doldrums. ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइमा फेस, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं, वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहाँ कैप्चर करके भेजें। हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पावर्टी से सारे विश्व में सब के सब, पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस, सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। कि बच्चा आया, उसने मुझे जाके उस दिन समझाया कि भट्ट साहब कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए, एक विराट स्वरूप दिखाया। उन्होंने कहा कि 9000 सिनेमा हॉल्स को क्यों टारगेट करें, विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं, हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9,000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें? कहीं पर जुर्रत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन ने के अंदर एक जुर्रत पैदा हुई है, और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। दी स्किल्स टू क्रिएट ऑल योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि 40% कॉस्ट कम कर देगा। 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास तो बड़ा स्टार है, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आप तू अपना कंसेप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माय कंट्री, द लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि जो रोशनी राजा पे चमकती है वो भिखारी भी वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जो फायदा होता है तो सबको होता है। इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं ये अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे 9,000 के सिनेमा तक हॉल से हम सीमित नहीं रखेंगे खेल हमारा, 1.5 लाख। तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स, नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स हों, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम चूक जाएंगे। ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है। कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हमने जब अपनी जिंदगी में मुड़ कर देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे, बिल्कुल। और ऐसा लगा कि गिरा और गिरते गिरते पंख इसके निकल आया और ये उड़ रहा है।
और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर in a situation where we can provide the entire film industry all the skills that we have mastered. जुदा होके भी हमने जो skills हमने लर्न की, हमने भी paid very heavily. ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता है, वो सारी learning experiences available to the industry. क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो वो रोशनी नहीं है, उसका फायदा आपके घर में भी आपके घर में भी स्पिन होती है. So this is what is the thought behind it, and I feel that the virtual technology is a win-win situation for everyone. And finally, I think Vikram is telling me I have covered it because he wrote down these points to me that I shouldn't miss anything. जी, मगर एक ही बात मैं कहूँगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बजता है, ऐसे ही वक्त करवट लेता है और बात बदल जाती है. एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी में, सडनली, एंड एवरीथिंग चेंज्ड. सो वी आर ऑल, हम सब, irrespective of the businesses we belong to, we are all flowing in a river of time which is changing relentlessly and continuously. और ऐसे में हमने एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक अनरियल इंजन और एलईडी की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है. मैं कहूँगा दावे के साथ, छाती ठोक के कहूँगा मास्टर किया है, क्योंकि हम गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम ओवरशूट नहीं करते थे, हम शॉर्ट्स एक्सेसिवली नहीं लेते थे, हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे, हमारा रॉ फुटेज वेस्ट नहीं होता था. जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का एक सफर हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफर तय करके आया है, और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जुर्रत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो, हम विदेशियों को ले आएंगे. जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं, दुनिया के कोने कोने में उनकी जो पहचान है, सब सल्यूट करते हैं. नारायण मूर्ति इंफोसिस की मूवमेंट 6 लोगों के नाम चुनी होती पुणे में. दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड. मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हैं. बस आईना एक मर्तबा देख तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है. क्योंकि फायदा सब्जेक्ट अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है. एंड इफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम हिज लर्निंग देन इट्स अ बेटर वर्ल्ड. थैंक यू वेरी मच.